پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. اس میں آج ہم سب حاضر ہیں. اللہ کی رحمت سے 12 مقابلے ہو چکے اور آج 13ویں مقابلے میں ہم موجود ہیں. 12 ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں اور آج تلاش ہے 13ویں. 2 مختلف شہروں سے ٹیمیں آئی ہیں. جنوبی پنجاب سے اسلامی بھائی آئے ہیں اور دوسری طرف سرلے کلاں. یہ تھوڑا سا مشکل نام ہے، چھوٹا سا یہ علاقہ ہے، مگر ماشاءاللہ وہاں سے بھی ٹیم نے کوالیفائی کر لیا ہے. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چھوٹے سے علاقے کے اسلامی بھائی اپنی ٹیم کو آگے لے جا سکتے ہیں یا آج خانے وال والے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا ان کی تیاری کیسی ہے. آج پروگرام ہم نے جلدی شروع کیا، اس کی ایک وجہ ہے کہ تقریباً 9:30 بجے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری صاحب ایک عظیم الشان اجتماع سے بیان فرما رہے ہیں اور یہ قافلہ اجتماع ہے. بڑی تعداد میں عاشقان رسول کی آمد متوقع ہے اور ایک شاندار اجتماع ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش بھی دیکھنا ہے، قافلہ اجتماع میں بھی شرکت کرنی ہے. آئیے چلتے ہیں، مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی ناظرین، پچھلا مقابلہ جو ہوا تھا، آئیے پہلے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں جو 3 ٹیموں کے درمیان ہوا تھا. 3 میں سے کون سی ٹیم تھی جو آگے بڑھ گئی؟ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور اس میں آج ہم موجود ہیں. الحمدللہ سیزن 17 شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے آج 12ویں مقابلے تک پہنچ گیا ہے. کس طرح وضو کرنا فالج کے مرض سے بچاؤ ثابت ہو سکتا ہے؟ وضو کی یہ ترتیب کہ پہلے ہاتھ دھونا، پھر چہرہ دھونا، پھر کونیوں تک دونوں ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا. وضو کی یہ جو ترتیب ہے یہ فالج کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. اشک عشق سے آنکھیں ہیں، دل بھی سخت ہے. آپ ہی چاہیں گے تو آقا ہمیں تڑپائیں گے. آپ ہی چاہیں گے تو آقا ہمیں تڑپائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں کس مقام پر رمضان شریف کے روزے فرض ہونے کا ذکر ہے؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 اور 185. آیت نمبر 183 اور 185 سورہ بقرہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. فیصلہ آباد کے طیب فاروق صاحب، آپ سے 5 سوال ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل کے واقعے کے بعد دنیا میں تشریف لائے. صحیح. زبور شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. غلط. توبہ گناہوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کا نام ہے. صحیح. امام غزالی حنفی نہیں ہیں. صحیح. توبہ کے 3 رکن ہیں. صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. آج کا مقابلہ فیصلہ آباد والے جیت گئے ہیں. اذکروا اللہ. سیال شریف اور مری کے اسلامی بھائیوں نے بڑی اچھی کوشش کی، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. فیصل آباد والے پچھلے مقابلے میں آگے بڑھ گئے. اب دائیں طرف میرے خانے وال کے اسلامی بھائی ہیں، اپنا اپنا نام بھی بتائیں گے اور کیا مصروفیات ہیں وہ بھی بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طیب اتاری، والد محترم کا نام مرید حسین ہے. میں فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ خانوال کا درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں اور میری رہائش خانوال نزد فیضان مدینہ ہے. ماشاءاللہ. جی اگلے اسلام بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد ارشاد ہے. میرا تعلق بیسیکلی دنیا پور سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ دنیا پور میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اور والد صاحب کا نام عبد الجبار ہے. بیسیکلی میرا تعلق دھنور شہر ضلع لودھنا سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ دنیا پور میں درجہ 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. چلے جناب، خانیوال کی ٹیم ہم تک پہنچی ہے تو کیسے پہنچی ہے؟ ویسے ان قریب میرا بھی خانیوال آنے کا پلان ہے، اور بلکہ صرف میرا نہیں، پوری ذہنی آزمائش کی ٹیم کا، کیونکہ آپ کے قریب ہی کبیر والا میں غالباً 8 دسمبر ہم نے طے کیا ہے مقابلہ ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ اس کبیر والا میں عظیم الشان ذہنی آزمائش کے پروگرام میں خانے وال کی ٹیم ہمارے ساتھ ہوگی یا کون سی ٹیم ہوگی، یہ تو وقت بتائے گا. مگر ابھی ہمارے پاس خانے وال کی ٹیم پہنچی ہے تو کیسے پہنچی ہے، آئیے اس کے مناظر دکھاتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह सीजन 17 के ऑडिशन जारी व सारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुंच चुके हैं पंजाब के शहर खानेवाल में। आज यहाँ ऑडिशन का सिलसिला होगा। आइए आपको लिए चलते हैं ऑडिशन की तरफ। आ गया है फिर से ज़हनी आज़माइश नाज़रीन, याद में हमको मदीने की रुलाने के लिए। इल्म दी तो नूर है गर्ज की आवाज सुनकर हमें क्या करना चाहिए? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम गर्ज की आवाज़ सुनो तो अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जिक्र करने वाले को नहीं पहुँचती। करूँ खाशियाना दुआ या इलाही, हमेशा निगाहों को अपनी झुकाकर करूं खाशियाना दुआ या इलाही। बना शाही के काफिला या इलाही, ना नेकी की दावत में सुस्ती हो मुझसे, बना शाय के काफिला या इलाही। आहों की आंसुओं की सौगात ला रहे हैं, उसने अमल हमारे पल्ले में कुछ नहीं है, आहों की आंसुओं की सौगात ला रहे हैं। इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल्यकीन ये नूर है, जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल्यकीन ये नूर है। जनाब, खानेवाल की टीम हम तक कैसे पहुंची हमने देखा। मेरी बाईं तरफ सरले कला के इस्लामी भाई हैं, उनके नाम और उनका ताल्लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तैयब अली अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम इफ्तिखार अहमद है। मेरा ताल्लुक ज़िला मंडी बहाउद्दीन के गांव मोह शरीफ से है। मैं अपने गांव में इमामत करवाता हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तैयब ज़फ़र है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम ज़फ़र इकबाल है और मैं जामिअतुल मदीना लिया में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। अगले इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद अफजल है। मैं BS साइकोलॉजी 1st सेमेस्टर और दर्स निज़ामी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह। आइए देखते हैं कि जी कुछ फरमा रहे थे आप। और मेरा बेसिकली ताल्लुक फतेहपुर से है। फतेहपुर से। जनाब, अब देखना यह है कि सरले कलां, डिफिकल्ट नेम, छोटा सा विलेज, टीम पहुंची तो कैसे पहुंची, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश के सीजन 17 के ऑडिशन का कारवान चलते चलते आज पहुंच चुका है मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट के शहर सरले कला में। आज इंशाअल्लाह उल करीम यहाँ ऑडिशन का सिलसिला होगा। आइए आपको लिए चलते हैं ऑडिशन की तरफ। आ गया है फिर से ज़हनी आज़माइश नाज़रीन, याद में हमको मदीने की रुलाने के लिए। इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल्यकीन ये नूर है, जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश, आ गया बेकरारी से हमें रहता है इसका इंतजार, इसका हर एक मरहला भी किस कदर है शानदार। बेकरारी से हमें रहता है इसका इंतजार, इसका हर एक मरहला भी किस कदर है शानदार। फर्ज वाजिब फर्ज सुन्नत आओ मिलकर सीख ले, नाम है अमाल अपना हम सजाने के लिए। इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल्यकीन ये नूर है, जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश, आ गया जुस्तजू है दीन का पैगाम या रब आम हो, परचमों में सबसे ऊंचा परचमे इस्लाम हो। जुस्तजू है दीन का पैगाम या रब आम हो, परचमों में सबसे ऊंचा परचमे इस्लाम हो। अहले सुन्नत का चमन भी। कुरान पाक की 5 सूरतों के नाम। सूरतुल निसा, सूरतुल मरियम, सूरतुल बकरा, सूरतुल इखलास, सूरतुल कौसर। माशाअल्लाह। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। तो मेरी जान शरारे जहीदा होना था, जो संगे दर पे जे बेसायों में था मिटना, तो मेरी जान शरारे जहीदा होना था। मेरी उम्मीद तुझे आरमीदा होना था, हुजूर उनके खिलाफ अदब थी बेताबी, मेरी उम्मीद तुझे आरमीदा होना था। न सबर दिल को गजाले रमीदा होना था, पनाहे दामने दश्ते हरम में चैन आता, न सब्र दिल को गजाले रमीदा होना था। इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल्यकीन ये नूर है, जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल्यकीन ये नूर है, जिसके सीने
جی नाज़रीन, बड़े कमाल का ये जामियतुल मदीना है। मुझे याद है कि मैं भी रात को काफ़ी देर से यहाँ गया था और जंगल में मंगल जिसको कहा जाता है कि एक बिल्कुल खेतों के दरमियान एक चमकता दमकता फैज़ान मदीना, जामियतुल मदीना मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन सब इस्लाम पे कुछ जज़ाए खैर दे। और वहाँ से टीम आज हम तक पहुँच गई है। अब देखना ये कि अब यहाँ से आगे सरले कलाम वाले कहाँ तक जाते हैं। नाज़रीन, हर रोज़ अब आपसे सवाल करते हैं, उसका जवाब लेते हैं। सवाल, उसका जवाब और उसकी कुरानदासी। गया था वो सवाल ये था कि हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या रिश्ता है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भतीजे हैं। रहील अहमद वल खलील अहमद इस्लामाबाद, हुजूर बख्श मदनी, नुशैर फ़रोज़ बिनते अंसर चीचा वतनी, मोहम्मद इकबाल सुल्तानी कराची, मोहम्मद अशफाक अत्तारी टंडो आदम, मोहम्मद बख्श अत्तारी बिन गुलाम नबी ढेर की, उम्मे हानिया दीनगा, फ़ैदान अली मेमन सजावल, मोहम्मद सुलेमान गुजरात, मोहम्मद जावेद खैबर पख्तूनख्वा बिनते अरशद अत्तारिया फैसलाबाद, अब्दुल हकीम अत्तारी। आज जिस खुश नसीब का कुर्रा निकला है जा रहा है टंडो आदम, तोहफा मोहम्मद अशफाक अत्तारी। चलें जनाब, मोहम्मद अशफाक अत्तारी साहब रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आप तक आपका तोहफा पहुंचाया जाएगा। हर सिलसिले के शुरू में हम नाजरीन से सवाल करते हैं जिसका जवाब प्रोग्राम के आखिर में कुरानदाजी के जरिए इनाम दिया जाता है। सवाल बड़ा प्यारा है, कुरान की कितनी सूरतें तस्मिया शरीफ यानी बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं? कुरान पाक की कितनी सूरतें बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं? इसका जवाब आपने हमें टेक्स्ट मैसेज के जरिए देना है। एक ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन के लिए आज मैं अजीम शान ऐलान कर रहा हूँ, सब गौर से सुन लें। अभी तक अगर ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज से जो भी ज़हनी आजमाइश के सही जवाबात देंगे, 5 आईडीज़ का तोहफा तो हम रोज देते हैं, मगर तमाम सही जवाब देने वालों का डाटा महफूज रखेंगे और इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश का फाइनल जो कि 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा, एक ग्रैंड क्विज होगी उन तमाम सही जवाब देने वालों की और उसमें इंशाअल्लाह 3 ग्रैंड प्राइजेस दिए जाएंगे। अब वो तोहफे क्या होंगे वो इंशाअल्लाह वक्त आने पर आपको बताएंगे। मिस मत कीजिए, ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हर प्रोग्राम में जवाब दीजिए। क्या मालूम आपकी नाम सेव होता रहे और जब कुरानदाजी हो फाइनल वाले दिन तो आपको एक खुशगवार सा प्यारा सा तोहफा भी मिल जाए। अब सवाल आज का, ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन का आज का सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस गज़वे में अपना तमाम माल खैरात किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों में एक सही जवाब है। सही जवाब दीजिए, अपनी आईडी सेव रखिएगा और चेक कीजिएगा प्रोग्राम के आखिर में कि क्या आज इनाम लेने वालों में आप शामिल हैं या नहीं। आइए नाजरीन, आपको बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जनाब, हमने कुछ तब्दीली की है आज के प्रोग्राम में। इल्म नूर है, इश्क के बोल, एक नया सेगमेंट लाए हैं, सहाबा हमारे बड़ी शान वाले। उसके बाद खानदानी रिश्ते जिसका आपको इंतजार रहता है वो सेगमेंट आ गया है। तलाश कीजिए कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। सवाल है खानेवाल वालों से, इबलीस की कितनी किस्म की औलादें हैं और उनके नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मनकूल है कि इबलीस की 5 किस्म की औलादें हैं और इसने इनमें से हर एक को अलग अलग मामला सौंप रखा है। फिर इनके नाम भी जिक्र किए, सब्र, अल-और, मबसूत, दासिम, जंबूर। जी, सब्र, अल-अवर, मबसूत, दासिम, ज़ल-नबूर। ये अजीब बात है कि इसके ये 5 बच्चे हैं और इनकी 5 किस्म की औलादें हैं जिनको अलग अलग गलती काम सौंपे गए होंगे। सैयदना इमाम मुजाहिद फरमाते हैं अल्लाह पाक हमें इबलीस के वारों से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सहाबाए किराम के सामने जब कुरान पाक की तिलावत की जाती तो उनकी कैफियत कैसी हो जाती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अरवा बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप हज़रत सैयदना अस्मा बिनत अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हा से अर्ज़ करते हैं कि जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के सामने
قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو ان کی حالات و کیفیت کیسے ہو جاتے ہیں. تو حضرت سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو ان کے حالات بدل جاتے اور ان کے آنسو روا ہوتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. جب ان کے سامنے تلاوت قرآن کی جاتی تو ایسا ہوتا جیسے اللہ پاک ان کی صفات بیان فرما رہا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو بھی قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، سوچ کے ساتھ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. کیا امی ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے؟ ہم سجانے کے لیے علم دی تو نور ہے، ہاں بالحقیقت نور ہے، جس کے سینے میں سزا سینہ وہی فل نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امی اسے کہتے ہیں جو نہ لکھتا ہو اور نہ پڑھتا ہو. یہاں نبی غیب داں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امی فرمایا گیا، لوگوں کو اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ وہ نبی جو بغیر کسی سے پڑھے ایسی کمال کی علم کی غیب کی خبریں دے رہا ہے تو بے شک یہ امی ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. جی نبی پاک کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا فقہائے کرام اور علماء دین کی اطاعت واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امام باقری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد کتاب و سنت ہے اور اولی الامر سے کون مراد ہے، یعنی کہ حکومت والوں سے کون مراد ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد فقہاء کرام اور علماء دین ہے، چونکہ یہ انسانوں کو دین سمجھاتے ہیں، اس لیے اللہ عز و جل نے ان کے اطاعت کو واجب کر دیا ہے. جی ہاں، اس سے مراد یعنی اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد فقہاء اور علماء دین ہیں، چونکہ یہ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اس لیے اللہ پاک نے ان کی اطاعت کو واجب کر دیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. طلب علم کے لیے سفر کرنے والے کی کیا فضیلت ہے؟ سبحان اللہ. مبارک ہو انہیں جو علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے آج غور سے سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے فرشتے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں فرشتے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. مچھلیاں دریا میں اور آسمان و زمین والے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. کیا بات ہے. جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے فرشتے اپنے بازوؤں سے اس پر سایہ کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں اور آسمان و زمین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. مبارک ہو انہیں جو علم دین کے لیے سفر کرتے ہیں. اور سبحان اللہ علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے قافلے بھی ہیں. اور سبحان اللہ ماہ نومبر دعوت اسلامی نے مدنی قافلے کا مہینہ قرار دیا ہے. پاکستان بھر میں قافلہ اجتماع ہو رہے ہیں. آج کراچی میں بھی قافلہ اجتماع ہے. آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے ہم بھی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ایک شخص نے امام محمد کو خواب میں دیکھ کر حال دریافت کیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھ کر حال دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور فرمایا کہ اگر میں تجھے عذاب دینا چاہتا تو تجھے علم عنایت نہ فرماتا. کیا بات ہے. اللہ فرماتا ہے اگر میں تجھے عذاب دینا چاہتا تو تجھے علم نہ عطا فرماتا. یہ علم کی ویلیو ہے, یہ علم کی حقیقت ہے. اللہ کرے ہم علم دین سیکھنے والے بنے. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہ تین سوال تو ہو گئے. اب سوال ہیں آپشن والے. سوال دکھائے جائیں گے, ٹاپکس دکھائے جائیں گے, آپ سٹاپ کہیں گے تو ٹاپک رک جائے گا, پھر اس پر آپ سے سوال کیا جائے گا. جی جناب. کھانے وال پہ ہر ٹرین آ کر رکتی ہے, جنکشن ہے. آج دیکھیں ان کی باری کہاں جا کے رکتی ہے. سٹاپ کریں بھائی. قرآن پاک. واہ بھائی واہ. جی سوال بتائیے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت میں کتنے حروف ہیں؟
को सलाम, कहती है दुनिया अमीर अहले सुन्नत को सलाम, और मुजद्दिद दीनों में ऑप्शन देंगे, मदद नहीं लेंगे। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत में कितने हुरूफ हैं? ऑप्शन दिखाइए। 17, 50 या 42? 42। 42 छोटी सूरत है कौन सी वैसे? सूरह कौसर। सूरह कौसर बारे में तो सुना था सबसे छोटी है, मगर आज पहली बार बहुत सारों को पता चलेगा कि उसके हुरूफ की तादाद 42 है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है सरले कलाम। जनाब कहां रुकता है इनका टॉपिक? जी स्टॉप। जनरल नॉलेज। सवाल क्या है? दुनिया में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? चले वाह भाई वाह, ये तो खेतों में रहते हैं और इनसे ये वाला सवाल हो गया है। या तो आप जवाब दे दें, या ऑप्शन ले लें, या मदद ले लें। मदद लेंगे भाई, किसी किसान से मदद लेंगे। जी कौन आया है मदद कर रहे भाई? किनसे लेंगे? वो आखिरी भाई। चलो भाई ये वाले भाई, चले भाई जाए मददगार के पास जाएं, और अगर ये सही जवाब दें तो इनको ये वाली सब्जी खिला भी दीजिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जी, वैसे इत्तेफाक है खेतों में रहने वालों के लिए सब्जी का सवाल आ गया। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद अनियाशबीर। दुनिया में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जी आलू है। आलू है जी जनाब, आपका जवाब इन्हीं के साथ जाएंगे? जी सोच लें आप। मेरे पास ऑप्शन थे टमाटर, प्याज और आलू। ठीक, आलू ठीक है। चलो भाई आलू ठीक है भाई, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा ये तो बता दें, मैंने आलू जो खिलाने हैं वो चिप्स वाले खिलाने हैं या मसाले वाले खिलाने? भाई आलू खाते हुए एहतियात करें, और ये आलू ही आलू हो गया आजकल, तो ये ऐसा ना करें, सेहत का अपना ख्याल रखें। अब बारी है खाने वालों की। जनाब टॉपिक्स दिखाइए। स्टॉप। तो जनरल नॉलेज आ गया जनाब। सवाल क्या है? गंदुम की पैदावार में पाकिस्तान दुनिया के कौन से नंबर पर है? कमाल हो गया जनाब, आज तो लगता है किसानों का दिन मना रहे हो। चले भाई ऑप्शन लेंगे या मदद लेंगे? पाकिस्तान कौन से नंबर पर है? कोई है मददगार इस टॉपिक पर? नहीं, कोई मददगार नहीं है, लगता है ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। है इनसे मदद लेंगे? अच्छा भाई मदद लेंगे। चले भाई पाकिस्तान कौन से नंबर पर है, और इनका जवाब ये भी तय कर लेगा ये कौन से नंबर पर रहते हैं। चलें बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शहबाज अत्तारी, डेरा अल्लाह यार, बलूचिस्तान से। क्या बात है, कहाँ खाने वाल, कहाँ बलूचिस्तान, क्या मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। अरे भाई गंदुम की पैदावार में पाकिस्तान का नंबर कौन सा? दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गंदुम होती है, पहला नंबर है, दूसरा है, 10वां है, 25वां है। पहला नंबर है पाकिस्तान। पहला नंबर है, क्या बात है। हाँ पाकिस्तान से मोहब्बत इतनी है ना, पहले ही कह दिया आपने। हाँ भाई अब इनके जवाब के साथ जाएंगे। अब आप ऑप्शन भी नहीं ले सकते। दूसरा नंबर है। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, दूसरा नंबर, 12वां नंबर और 8वां नंबर, और सही जवाब है 8वां नंबर। पाकिस्तान का दुनिया में गंदुम में 8वां नंबर है। इनको तो फौरन काफले में भेज दें। आज इज्तिमा काफला है। हाँ काफला इज्तिमा है, तो ये भी नियत कर लें। काफले में भेज दें जनाब। चले जनाब अब बारी है सरले कला वालों की। इनसे कौन सा सवाल होना है? स्टॉप। कुरान पाक तीसरी वही में कौन सी सूरत की आयत नाजिल हुई? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चाहे तो ऑप्शन ले लें, चाहे तो मदद ले लें। तीसरी वही में कौन सी सूरत की आयत नाजिल हुई? याद रहे नाजरीन, ये सवाल इनके सिलेबस में नहीं है और आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। अब जिसके नसीब में जो सवाल है, ऑप्शन में मदद मिल जाए या हाजरीन से मदद मिल जाए। ऑप्शन दिखाइए। सूरह आला, सूरह फलक, सूरह मुज़म्मिल। तीसरी वही में कौन सी सूरत की आयत नाजिल हुई? जी सूरह आला, सूरह फलक, सूरह मुज़म्मिल। जल्दी जवाब देंगे। आला। आपने कहा सूरह आला, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। सूरह मुज़म्मिल ये दुरुस्त जवाब है,
آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے. جناب موقع ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرنے کا. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں, کچھ تاجران بھی نظر آ رہے ہیں. سوال کیجئے. جو درست جواب دے گا انشاءاللہ اسے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر کردہ کتاب ہے اے لوگو. واہ, یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب فرمایا ہے براہ راست. تو یہ انشاءاللہ تحفے میں دیں گے. سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ ہمارے تاجر اسلامی بھائی بھی ہیں, اگر کوئی یہ جواب دینا واہ چاہے. بھائی واہ, یہ ان سے سوال بنتا تو ہے. ویسے بزنس کرنے والوں کو یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کا خاندانی پیشہ کیا تھا, مبارک پیشہ کیا تھا. میرا نام محمد عبداللہ بٹرا ہے اور میرا تعلق اورنگی ٹاؤن سے ہے. تجارت. جی تجارت ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. چلیں عبداللہ انشاءاللہ بھائی, یہ کتاب انہیں تحفے میں دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں زبردست. اب تاجر سوچے کہ کتنے مبارک پیشے سے میں وابستہ ہوں. سچا تاجر, امانت دار تاجر. حدیثوں میں مضمون ملتا ہے قیامت کے دن شہداء, انبیاء, صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو پلیز اگر تجارت کر رہے ہیں تو ایمانداری سے کریں, یہ تجارت ہی جنت کا سامان بن جائے گی. اگلا سوال. دوسرا سوال ہے کعبۃ اللہ شریف کے جو 4 کونے ہیں ان میں سے کسی 2 کونوں کے نام بتا دیں. 4 کونوں میں سے 2 کونوں کے نام. ہائے ہائے ہائے, اللہ ان کونوں کو جا کے چومنا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد نعمان اسلمی, پنجاب کے شہر سرائے عالمگیر سے. رکن اسود اور رکن یمانی. ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے. انشاءاللہ انہیں 2 تحفے, ایک کتاب 550 سنت اور آداب اور انشاءاللہ عطر, یہ تحفے میں دیں گے. سبحان اللہ. چلے جناب, یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. پہلے کال لیتے ہیں سلسلے میں. جی کال دیجیے گا. میرا نام خرم شہزاد اتاری ہے, میں کوٹ سلطان سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جس کا سارا سال انتظار رہتا ہے وہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے. آج سرلے کلاں اور خانوال کا مقابلہ ہے. حسنین بھائی سرلے کلاں ٹیم میں موجود ہیں اور آج میں سرلے کلاں ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں. چلے جناب, آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام زین بن طارق مقصود ہے, میں جڑاوالا سے بات کر رہا ہوں. میں خانوال کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام ٹیموں کو اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. چلے جڑاوالا والے خانوال کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ جس کو سپورٹ کریں. اپنے گھر میں بھی 2 ٹیمیں بنا لیا کریں, کچھ خانوال کے ساتھ ہو جائے, کچھ سرلے کلاں کے ساتھ ہو جائے. وہاں بھی انٹرسٹنگ ایک ماحول بن جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 8 نمبر ہیں سرلے کلاں کے اور 8 ہی نمبر ہیں خانوال والوں کے. آئیے ناظرین, وقت ہوا ہے بڑے ہی پیارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے عشق کے بول. چونکہ اشعار پڑھنے ہیں, نعتوں کے اشعار ہوتے ہیں, اور آج ہی شاعر مشرق مصور پاکستان ڈاکٹر اقبال کا دن بھی دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے. وہ بھی ایک کمال کے شاعر تھے اور ان کی شاعری میں کچھ اشعار تو ایسے ہیں کہ آج بھی پڑھیں تو بڑا حوصلہ ملتا ہے, عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اسی مناسبت سے کچھ اشعار اس قدر دنیا بھر میں مقبول ہیں اور اتنے شاندار ہیں, میں چاہوں گا آپ کو سناؤں. عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس وقت جو امت کا حال ہے, جو بے دینی, لا دینی اور دین سے دوری ہے, اس پر آپ لکھتے ہیں باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. بہت سارے اشعار ہیں مگر جو میرے فیورٹس ہیں میں اب وہ آپ کو سناتا ہوں. اور سبحان اللہ, یعنی کیا خوبصورت بات کی ہے. یہ سب کچھ جو دنیا میں ہے یہ ہے کس کے صدقے,
मैं भी इस दुनिया में हूं, आप भी इस दुनिया में हैं, ये नेमतें हैं, ये रौनकें हैं, ये सब कुछ जो है ये सदका है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। क्या खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमाए अफलाक उस्तादा इसी नाम से है, खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। यही बात तो बरेली के ताजदार ने लिखी ना कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, ये अशार ऐसे होते हैं हमें पढ़ने चाहिए जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं, इजाफा भी होता है। अब आइए नातिया शार की बारी है, इश्क के बोल हमारा सेगमेंट है। खानेवाल वालों से पहला सवाल करेंगे, ऐ प्यारी प्यारी जुल्फों वाले नजर इधर भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए प्यारी प्यारी जुल्फों वाले नजर इधर भी, मुद्दत से तक रहा है तुझको गुलाम तेरा, मुद्दत से तक रहा है तुझको गुलाम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पटता है दो जहां में तेरे ही घर से बाड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेना है सबका शेवा, देना है काम तेरा, लेना है सबका शेवा, देना है काम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भटका है दो जहां में तेरे ही घर का बाड़ा, भटका है दो जहां में तेरे ही घर का बाड़ा, लेना है सबका शेवा, देना है काम तेरा, लेना है सबका शेवा, देना है काम तेरा। माशाअल्लाह, आज प्यारी प्यारी बच्चियां आई हैं। मेरे बेटे मुश्तबा की ये बेटियां हैं। आजा 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 आजा, माशाअल्लाह। चले भाई, छोटी भी आ गई हैं, तीनों बच्चियां आ गई हैं। पहले एक बेटे के बच्चे आए थे तो मैसेज आने लगे, भाई ये मिशल फातिमा, मुलाइका फातिमा और मलिहा फातिमा, तीनों आ गई हैं माशाअल्लाह। इधर आजा इधर आजा इधर आजा। चले भाई, कुछ ना कुछ सुनाएंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बड़ी प्यारी हदीस है कि अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इन्हें याद कर लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। तो हमें अल्लाह के नाम याद करने चाहिए। कुछ नाम मिशल ने याद किए हैं, मिशल फातिमा ने, तो इंशाल्लाह हमें वो नाम सुनाएंगे। बिस्मिल्लाह। चलिए। सुभान अल्लाह। सब मिलकर कहे सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह भी कह दें। चले, अब आप क्या सुनाएंगी? घर से निकलने की दुआ, वो सुनाते चले। क्या सुनाएंगी? बच्चों की मर्जी है, जब सुनाना होगा सुनाएंगे, हमारी मर्जी थोड़ी सुनाएंगे। कौन सी दुआ याद है आपको? चलो ये सुनाएंगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़े, अल्लाह अल्लाह। चले माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इन बच्चियों को अपने माँ बाप की आंखों का नूर बनाए। आप दुआ करें आलिमा बाअमल बनाए और हम सब के बच्चों को हम सब की मगफिरत का जरिया बना दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, आप अपने अब्बू के पास जाएं, हमें प्रोग्राम करने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। शाबाश। चलें। अच्छा जनाब, एक एक शेर हो गया। अब बारी है दोबारा खानेवाल वालों की। इन्होंने नहीं जाना है, चलो ये मेरे साथ खड़ी है। चलो अच्छा ठीक है, आप भी खड़े हो जाएं। खुदा ने कह दिया महबूब से कि महशर में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाहगारों का तुम इंतजाम कर लेना, गुनाहगारों का तुम इंतजाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये है हुजूर का ही मर्तबा शबे मेराज।
बगैर वास्ता रब से कलाम कर लेना। बगैर वास्ता रब से कलाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर का ही मर्तबा शबे मेराज, ये है हुजूर का ही मर्तबा शबे मेराज। बगैर वास्ता रब से कलाम कर लेना, बगैर वास्ता रब से कलाम कर लेना। हाथ पकड़े हुए ले जाते जो तैबा मुझको, साथ इतना भी तो मेरे रुफका ने ना दिया। साथ इतना भी तो मेरे रुफका ने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाथ पकड़े हुए ले जाते जो तैबा मुझको, हाथ पकड़े हुए ले जाते जो तैबा मुझको, साथ इतना भी तो मेरे रुफका ने न दिया, साथ इतना भी तो मेरे रुफका ने न दिया। हाय उस दिल की लगी को बुझाऊं क्यों कर, हाय उस दिल की लगी को बुझाऊं क्यों कर। हाय उस दिल की लगी को बुझाऊं क्यों कर, फरते गम ने मुझे आंसू भी गिराने न दिया। हाय हाय फरते गम ने मुझे आंसू भी गिराने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुरूर नूर हो दिल में, बहार आंखों में। किस कदर है शानदार, बेकरारी से हमें रहता है इसका इंतजार, इसका हर जो ख्वाब में कभी आए निगार आंखों में, जो ख्वाब में कभी आए निगार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुआ है जलवा नुमा गुल अजार आंखों में। हम सजाने के लिए इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल्यकीन नूर है, जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। आ गया फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ है जलवा नमा गुल उज़्ज़ार आँखों में, खज़ां के दौर में फूली बहार आँखों में। खज़ां के दौर में फूली बहार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है तर्ज की। दोनों टीमों को एक एक तर्ज सुनाई जाएगी। खानेवाल वालों की बारी है, तर्ज सुनाई जाए। सेकंड चला दे। बारह सेकंड रह गए। गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए। हाँ ये इस पे चल जाएगा। ए बयाबाने अरब की तर्ज में ये भी चलेगा। हम मुझे क्यों कर, ठीक है चले फिर सुना भी दे इसी तर्ज में। हाले दिल किसको सुनाए आपके होते, यही कलाम है ना, यही कलाम है ना। गम मुझे क्यों कर सताएं। ए बयाबाने अरब तेरी बहार। हम इस तर्ज को इस कलाम से जानते थे, लेकिन चलें आपने भी जो तर्ज कही, और हमारा उसूल यही है कि अगर कोई और भी कलाम इस तर्ज पे आता होगा और आप जवाब देंगे तो जवाब दुरुस्त माना जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरले कलाम वालों की बारी है।
जल्दी करें, 2 सेकंड हैं। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरो बर मदीने में। जी जनाब, बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरो बर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की है। हाँ, इसी कलाम का मक्ता सुना दे। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा। क्या खूबसूरत जवाब दे दिया अमीर अहले सुन्नत ने इस शेर में। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद हुसैन कराची से। माशाअल्लाह। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। अच्छा, वैसे आज तो काफिला इज्तिमा भी है, तो आज तो हर सवाल के जवाब में वही जवाब दे जो काफिले की भी नीयत साथ साथ करे। माह नवंबर में कम से कम 3 दिन काफिला इंशाल्लाह नियत। इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश के बाद। ज़हनी आजमाइश में टीम में भी हैं आप? जी, कराची। अच्छा माशाल्लाह, जीतने के बाद काफिले में चले जाएं या पीछे रहने के बाद भी चले जाएं, बहरहाल काफिला कर लें। तोहफा दे दें इनको। एक तर्ज सुनाएं नाजरीन के लिए, हाजरीन के लिए। इंशाल्लाह गिलाफ काबा के धागे। चलें भाई। चले जनाब, किसकी बारी है? कौन पूछ रहे हैं? जल्दी करें, जल्दी करें, आज थोड़ा टाइम शॉर्ट है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अनीस अत्तारी है। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। दोबारा तर्ज सुनाएं। ये नहीं है, दोबारा तर्ज। जंगल रात अंधेरी वाली, इसमें ये नहीं बैठेगी ना। नहीं, चलें बहरहाल कोई बात नहीं। अब बारी है नाज़रीन, एक कॉल लेते हैं सिलसिले में और स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब्दुल हबीब तारी साहब, आपसे एक सवाल है कि एक शेर पूछना है। ज़ंदान लब ज़ुल्फ़ ख़ुशै के फ़िदाई, इसका दूसरा मिसरा क्या है? मुश्क खुतन लाले यमन, दुर्रे यतन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। इतने मुश्किल मुश्किल ना करो भाई, थोड़ी मेहरबानी। चले जनाब, स्कोर बोर्ड दिखाइए हमें। 18 नंबर है। अगला सेगमेंट बड़ा प्यारा, सुभान अल्लाह, नाम ही कितना प्यारा है। सहाबा हमारे बड़ी शान वाले। अहले सुन्नत का बेटा हुजूर, अहले सुन्नत का बेटा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह। चले जनाब, अब इसमें एक बहुत खूबसूरत अंदाज से ये सेगमेंट होगा। आप यहाँ देखेंगे, जरा मुझे स्क्रीन पर दिखाइए। वकीलुल्लाह, हैदर कर्रार, साहिब उहद, जुन्नूरैन और सफीना, ये सहाबा के अलकाब हैं। 1 मिनट का टाइम होगा। इस टीम ने 1 मिनट के अंदर ये 6 सहाबा के नाम इसके सामने लगाने हैं। 5 सहाबा के जितने सही नाम लगाएंगे उतने नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का ये सेगमेंट होगा। अगला बोर्ड। अच्छा, ये सारे नाज़रीन अपने घर पे भी सोचें, यहाँ भी सोचें कि हमें कितना पता है। अब ये देखें, साहिबुल उस्तवाना, गुल बिजादैन, मौज़िन बैतुल्लाह, सैफुल्लाह, सैयदुल अंसार। इस बोर्ड के अंदर कुछ सहाबा के नाम मौजूद हैं। सरले कलां की तरफ से एक इस्लामी भाई उस बोर्ड पे चले जाएं और यहां से खानेवाल वाले इस बोर्ड पर आ जाएं। आप दोनों के पास 60 सेकंड्स होंगे। कोई मशवरा करने का टाइम नहीं होगा। अपने काम पे तवज्जो रखिएगा क्योंकि 60 सेकंड में आपने काम पूरा करना है। वक्त शुरू होता है अब। जनाब 60 सेकंड हैं और दोनों टीमें अपनी अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। असहाबो अहले बैत पर कुर्बान। 30 सेकंड रह गए हैं, 30 सेकंड। असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान।
माशाल्लाह 12 सेकंड रह गए हैं, गौर से देख लें, अगर काम कर भी लिया है तो फिर गौर से चेक कर लें, गलती तो नहीं है जनाब। 5 सेकंड रह गए हैं। अल्लाह अकबर, वक्त खत्म हो गया जनाब, अब छोड़ दीजिए। आप सबसे मशहूर अलकाब को ही सबसे आखिर में लगा रहे हैं। चले जनाब, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अच्छा जनाब, अब चेक करते हैं, हमारी टीम ने हमें बताया होगा इंशाअल्लाह। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, इनके आगे इन्होंने लिखा है वकीलुल्लाह। अच्छा जनाब, बिल्कुल ठीक है, ये मौला अली का नाम इन्होंने टाइम गुजरने के बाद लगाया। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये साहिब ओहद हैं। हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन हैं। और हजरत महरान जो है वो रदी अल्लाह तआला सफीना हैं। तो हमारी ये टीम सरले कला ने 4 सही जवाब दे दिए 60 सेकंड के अंदर, इनको 4 नंबर मिलते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है हमारे खानेवाल वालों की। हजरत अबू लुबाबा, इनका कहना यह है कि हजरत अबू लुबाबा साहिबुल इस्तिवाना है, बिल्कुल ठीक है। हजरत अब्दुल्ला जुल बिजादैन, बिल्कुल ठीक है। हजरत अबू महजूरा, ये बताते हैं कि जनाब ये हजरत अबू महजूरा मौद्दिने बैतुल्ला हैं, ये भी ठीक है। हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह हैं। और हजरत उबई बिन काब सैयदुल अंसार। खानेवाल वालों ने 5 सही जवाब दे दिए हैं। बड़ा प्यारा सेगमेंट है, सहाबा के कैसे अलकाब, सहाबा का कितना बड़ा मर्तबा, ये भी हमें इंशाल्लाह इस सेगमेंट के जरिए सीखने को मिलेगा। जनाब, नंबर में कुछ फर्क आया है, मगर अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका आपका पुरजोर इसरार रहता है, और सेगमेंट का नाम है खानदानी रिश्ते। खानदानी रिश्ते सेगमेंट में इंशाल्लाह अंबिया के, बुजुर्गों के आपस के रिश्ते भी हम आपसे मालूम करेंगे, और आपके आपस के खानदान के कुछ रिश्ते भी आपसे मालूम करेंगे। पहला सवाल करेंगे खानेवाल वालों से। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हजरत यूशा भी अल्लाह के नबी, हजरत यूसुफ भी अल्लाह के नबी, आपस में रिश्ता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पड़ पोते हैं। जी हाँ, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पड़ पोते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरले कला वालों से सवाल, हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा का हजरत जकरिया से क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू हैं। मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के खालू हैं। जी हाँ, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के खालू हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, अब आपस के रिश्ते का जो सवाल है, इसमें एक नियत ये भी है, और हम भी कर लेते हैं कि बाज़ औक़ात ये न्यू जनरेशन को रिश्तों का पता ही नहीं होता कि कौन हमारा कौन सा रिश्तेदार है और हमें उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक जो है, ये तो हमारी शरीयत भी हमें सिखाती है। ज़वील अरहाम के साथ तो नेकी करने का अजर भी ज्यादा है, तो ये भी एक हमारी नियत होनी चाहिए। खानेवाल वालों सवाल, अब आपके खालू के बच्चों की, अम्मी की, वालदा के, शौहर की, बीवी की, बेटी की बेटी से आपका क्या रिश्ता है? वाह वाह वाह, हम आपसे पूछें तो आप कहते हैं इतना लंबा करते हैं। और ये देखें आप क्या कर रहे हैं बच्चों के। खालू के, जब नाजरीन भी जरा गौर करें, हाजरीन भी गौर करें, खालू के बच्चों की, अम्मी की, वालदा के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन या खालाजाद बहन। क्या बात है, घूम फिर के घर में ही बात आ गई है। ये बहन है या खालाजाद बहन है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 25 सेकंड में रिश्तेदार तलाश कर लिया है। अब बारी सरले कलाम वालों की है। आपके मामू की बीवी की सास के बेटे की बहन से आपका क्या रिश्ता है? वो हमारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो हमारी माँ लगेगी या फिर खाला लगेगी? जी जनाब, या तो वालदा है या खाला है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए कॉल सिलसिले में शामिल कर। सेगमेंट कंप्लीट हो गया।
अपने शूरा हाजी अब्दुल हबीब भाई, आज मैं भी आपसे एक रिश्ते के बारे में पूछना चाहता हूँ कि हुजूर आपके दादा के बेटे के पोते के बेटे की फुफ्फो के भाई के चाचा से आपका क्या रिश्ता होगा? वो बड़े अच्छे इंसान है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो जो भी हैं, और अल्लाह उनको भी मदीना दिखाए। एंज तो ना करो साढ़े नाल। देखें ये तो इनकी प्रैक्टिस होती है, और मेरे पास कलम भी नहीं है कि मैं इसको लिख सकूं, और आज थोड़ा सा सिलसिला भी फास्ट चलाना है इंशाल्लाह। ये कॉल चले, हम आपको यूं नहीं करते कि जवाब नहीं देते, कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में ये कॉल दोबारा चला दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अभी सुनूंगा नहीं, कल ही सुनूंगा इंशाल्लाह, और कोशिश करूंगा कि सही जवाब दे सकूं। चले जनाब, स्कोर बोर्ड दिखाइएगा। 26 सरले कलां और 27 खानेवाल। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है तलाश कीजिए। एक और बोर्ड एक्टिविटी है, अल्फाज तलाश करने होते हैं दोनों टीमों को। जनाब खानेवाल के इस्लामी भाई तशरीफ लाएंगे, मार्कर आपके पास होगा, 30 सेकंड आपके पास होंगे, और आपने तलाश करना है गीबत। 1 मिनट पहले रुकिएगा, सेकंड्स नहीं चलाइएगा, पहले ये बोर्ड दिखा दें नाजरीन को जूम करके, ताकि हमारे नाजरीन चाहते हैं कि हम भी घर में बैठकर इसका जवाब दें। स्क्रीन पर बोर्ड दिखा दें, ये लाइन भी हटाएं नीचे से, ठीक है, और स्क्रीन शॉट ले लें। सारे इस्लामी भाई नाजरीन जो घर में बैठे हैं मोबाइल पर तस्वीर ले लें इसकी, ठीक है। अब आपने गीबत नहीं ढूंढना है क्योंकि आपको टाइम ज्यादा मिल गया है। अब मैं आपका नाम लफ्ज चेंज करूंगा, आपने चुगली ढूंढना है। चुगली करनी नहीं है, चुगली ढूंढना है। हाँ, मोहब्बतों के चोर हैं चुगलखोर। 30 सेकंड्स। 15 सेकंड रह गए हैं, चुगली नहीं मिल रही है। टाइम आपका पूरा हो गया, अब रुक जाइए जनाब। लेकिन चले बताइए कहाँ मिली, फिर भी नहीं मिली आपको। चुगली तो यहाँ भी नहीं है, वैसे चुगली होनी नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना जनाब। है वैसे मुश्किल, थोड़ी देर बाद हम ढूंढेंगे। चले जनाब आ जाए भाई। आप तकब्बुर लफ्ज ढूंढिए, मगर तकब्बुर होना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। घर वाले देखें चुगली ढूंढ सके कि नहीं, गीबत ढूंढ सके कि नहीं, आप सब अपने घरों में भी बैठ के ढूंढें। तकब्बुर ढूंढ लिया जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तकब्बुर ढूंढा है, मगर इसको दिल से निकाल देना है इंशाल्लाह। आइए जनाब, आपकी बारी है। लफ्ज़ झूठ तलाश कीजिए। कितनी बुरी बुरी चीजें तलाश करवा रहे हैं हमसे। झूठ के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग, हाँ, ये सारी बुराइयों से दूर रहेंगे हम। झूठ लफ्ज़ तलाश करना है 30 सेकंड के अंदर। जनाब लफ्ज़ झूठ तलाश कर लिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह खानेवाल वालों ने। अब बारी है सरले कलां के इस्लाम पे तशरीफ लाएं। यार वो चुगली मिली नहीं थी, आप चुगली तलाश कर दो। अल्लाह अकबर, ये तो फौरन जाके तलाश कर लिया है, जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, है कोई यहाँ 12 दिन के काफिले की नियत करे, फिर उसको स्टेज पे बुलाएंगे। 12 दिन काफिले पे सफर करेंगे। चले आप आ जाएं, वो पीछे वाले भाई आ जाओ। तारीख भी ले लेना भाई इनसे जल्दी, शाबाश। 12 दिन काफिला भी करेंगे और इंशाअल्लाह ऐसा लफ्ज ढूंढेंगे जिसको हमने अपने दिल से निकालना भी है, और वो लफ्ज है गीबत। वालेकुम अस्सलाम। 1 माह के काफिले की नियत, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज गीबत। 30 सेकंड्स हैं आपके पास। गीबत तलाश करें जनाब। ऐसे गीबत होनी नहीं चाहिए, मुझे तो मिल गई है, और आप जहां घूम रहे वहीं पर है, और टाइम मेरा ख्याल है पूरा हो गया है। हाँ यही है। चले मैं आपको करवा देता हूं, पीछे हटें, ठीक है। चले 1 माह के काफिले में सफर करें, अल्लाह को सलामत रखे। नाजरीन आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। बचाने के लिए
जनाब नंबर में कुछ फर्क आ गया है, अब सरले कलां आगे है, कभी खानेवाल कभी सरले कलां, न जाने ये ट्रेन जाकर कहां रुकेगी। वक्त हुआ है मुख्तसरन नेक अमाल का जायजा और महफिल नात होगी और फिर आखिरी 2 सेगमेंट होंगे। दोनों टीमें आगे तशरीफ ले आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ नेक अमाल के रसाइल निकाल लीजिए, और जिनके पास रसाइल नहीं हैं वो एप्लीकेशन के ज़रिए नेक अमाल का जायजा ले सकते हैं। अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ बाद जमात अदा की, हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी तस्बीह फातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़ात पढ़े, सजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आंखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीचे रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायजा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमात से 2 घंटे घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्ताड़ी है, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, जोहर की सुन्नत कबलिया फर्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या ईशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से किसी एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीजें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ गीबत चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, जाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शिद को इशारे सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक मस्खरी तंज़ अज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह हमें इखलास के साथ नेक अमाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। बलगल औला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करे जारा साजी जियारत किसी की, करे जारा साजी जियारत किसी की, करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के, भरे जख्म दिल के, मलाहत किसी की, करे चारा साजी जियारत किसी की, चमक कर ये कहती है तलअत किसी की, चमक कर ये कहती है तलअत किसी की, के दीदारे हक है, के दीदारे हक है, ज़ियारत किसी की, के दीदारे हक है, ज़ियारत किसी न रहती जो पर्दों में सूरत किसी की, न रहती जो पर्दों में सूरत किसी की, न होती किसी को ज़ियारत किसी की, न होती किसी को ज़ियारत किसी की, अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी
हमें क्या खुदा को, हमें क्या खुदा को है उल्फत किसी की, हमें क्या खुदा को है उल्फत किसी की। और अभी पार हो डूबने वाले बेड़े, अभी पार हो डूबने वाले बेड़े, सहारा लगा दे जो रहमत किसी की, सहारा लगा दे जो रहमत किसी की। किसी को किसी से हुई है न होगी, खुदा को है जितनी मोहब्बत किसी की, खुदा को है जितनी मोहब्बत किसी की। दमे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, दमे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। शफाअत किसी की है रहमत किसी की, शफाअत किसी की है रहमत किसी की। खुदा का दिया गया तेरे पास सब कुछ, खुदा का दिया है तेरे पास सब कुछ। आका तेरे होते क्या हमको हाजत किसी की, तेरे होते क्या हमको हाजत किसी की। अमर एक इशारे में दो टुकड़े देखा, अमर एक इशारे में दो टुकड़े देखा। समाने पे रोशन है ताकत किसी की, समाने पे रोशन है ताकत किसी की। और हमारा भरोसा हमारा सहारा शफाअत किसी की, हिमायत किसी की। और हमी है किसी की शफाअत की खातिर, हमारी ही खातिर शफाअत किसी की। न पहुंचेंगे जब तक गुनाहगार के, न जाएगी जन्नत में उम्मत किसी की, न जाएगी जन्नत में उम्मत किसी की, न जाएगी जन्नत में उम्मत किसी की। फतरदाने डाली है बागे गले में, फतरदाने डाली है बागे गले में। हो जाए राजी तबीयत किसी के, हो जाए राजी तबीयत किसी की। खुदा से दुआ है कि हंगामे रुखसत, खुदा से दुआ है कि हंगामे रुखसत, खुदा से दुआ है कि हंगामे रुखसत। किसी की
किसी की पारे सक़्फ़ दिल के मलावत किसी की करे चारा साजी सियारत किसी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है शहंशाह सुखन मौलाना हसन रज़ा खान साहब की, कमाल अंदाज में कलाम लिखते हैं। नबी पाक का नाम भी नहीं लिया और सब कुछ बयान कर दिया। सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन एक दो कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम उम्मे हनीफा है, मैं क्लाउड से बात कर रही हूँ। मैं आपको आनात सुनाऊंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कनबी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी आपने हमें हम सुनाई। नाज़रीन वक्त हुआ है हमारे पास हदीस की वीडियोस बच्चे भेजते हैं, आइए वीडियोस देखते हैं। नूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी की एक खुसूसी दुआ होती है जिसे अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाता है। तो हर नबी ने वो दुआ मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शिफाअत के लिए बचा कर रखी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी की एक खुसूसी दुआ होती है जिसे अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। तो हर नबी ने वो दुआ मांग ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शिफाअत के लिए बचा कर रख लिया। चले नाजरीन, ये दुआएं हदीस पाक की वीडियोस हमने देख ली। आज की हदीस हजरत सैयदना सखबिरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है, जो शख्स इल्म तलब करता है तो ये उसके गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी वीडियोस बना के भेजें। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हम चलाएंगे, मगर कल दोपहर 12 बजे से पहले हमें वीडियोस भेज दें। आइए नाजरीन अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कुरानी मालूमात। बड़ा यूनिक सेगमेंट है कुरान के बारे में। बाज़ औक़ात तो ऐसे सवाल होते हैं कि जबरदस्त मालूमात में इजाफा होता है। आज भी सवाल कुछ ऐसे ही हैं। कोई ऐसी 3 सूरतें बताएं जिनके नाम उनकी पहली आयत में आते हो, सूरत का नाम ही उसकी पहली आयत में हो। ऐसी 3 सूरतें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल मुल्क, सूरतुल हाक्का और सूरतुद दहर। सूरह मुल्क, सूरह हाक्का, सूरह दहर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की ऐसी कितनी सूरतें हैं जिनका इख्तिताम अजीजुल हकीम पर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल जासिया, सूरतुल हशर और सूरतुल तगाबुन। सूरह जासिया, सूरह हशर, सूरह तगाबुन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सूरह असर और कौसर के अलावा वो कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ 3 आयत है? ये तो हमें पता है कि सूरह कौसर में 3 आयत हैं, सूरह असर में भी हैं। और कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ 3 आयत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुन नस्र। जी हाँ, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इसमें भी 3 आयत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की कितनी सूरतों में सिर्फ 4 आयत हैं? कैसा यूनिक सवाल। 4 आयतों वाली सूरतें क्या हमें याद हैं? सूरत तो याद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत इखलास और सूरत कुरैश। सूरह इखलास, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद और सूरह कुरैश, दी इलाफी कुरैश वाली सूरत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। कुरानी मालूमात सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 34 नंबर सरले कला, 33 नंबर खानेवाल। इसका मतलब 1 नंबर का फर्क से सरले कला आगे है, मगर आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा किस टीम ने आगे जाना है। सेगमेंट का नाम है सफर है। एक इस्लामी भाई खानेवाल के सरले कला वाले खानेवाल पर आ जाएं। 5-5 सवाल होंगे, या तो सही कहेंगे या गलत कहेंगे। हमें
हमारे एक व्यूअर ने, हम मशवरे आपके लेते हैं और उस पर अमल करने की भी बाज़ औक़ात कोशिश करते हैं। एक ये हमें मशवरा आया था कि जो आप सही और गलत जवाब बताते हैं, आप गलतियां तो बता देते हैं मगर अब ये नहीं पता चलता कि कौन सा सही था कौन सा गलत था, ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। तो अब इंशाअल्लाह हर 5 सवाल के बाद जब आप स्क्रीन पर ये देखेंगे कि कितने सही हैं कितने गलत हैं, तो उसके सामने आप ये भी देख सकेंगे कि प्रॉपर सही जवाब क्या था। तो इंशाअल्लाह ये आपके इल्म में इजाफा होगा। आप चाहें तो उसका भी स्क्रीनशॉट यानी पिक्चर ले सकते हैं। तैयब अत्तारी भाई खानेवाल से, जहां मस्जिद जुल हुलैफा कायम है वो मकाम आजकल अबियार अली के नाम से मशहूर है। सही। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा उहद के मौके पर जहां आराम फरमाया था उस जगह को अब मस्जिद मुस्तराह कहते हैं। सही। 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। सही। कुर्बानी के मसाइल और फजाइल पर अमीर अहले सुन्नत ने रिसाला अबलग घोड़े सवार तहरीर फरमाया है। सही। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत इमरान है। गलत। हाँ, आखिरी भी सही ही था। ये गलती आपसे हो गई है। जवाब 4 नंबर हासिल कर लिए हैं खानेवाल वालों ने। अब तैयब अली जिनका ताल्लुक सरवे कला से है, सरले कला से, औरत के लफ्जी माना है छुपाने की चीज। सही। फजर की अजान में 21 कलिमात होते हैं। गलत। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोजादार रहते थे। गलत। इमाम मालिक का मजार शरीफ बगदाद में है। गलत। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने भर की मुद्दत में हजरत सुलेमान की बारगाह में हाजिर कर दिया था। सही। जनाब आपसे भी एक गलती हुई है और वो गलती हजरत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोजादार रहते थे, यही सही था। आपने वहां गलत कहा। आपने भी 4 नंबर हासिल किए। खानेवाल वालों की बारी है। हसन रजा आपका नाम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 500 जुम्मे अदा फरमाए। गलत। वुजू में किसी उज़्व को धोने के ये माना है कि उस उज़्व के हर हिस्से पर कम से कम 2 कतरे पानी बहाए जाएं। सही। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब नमाज का तरीका में नमाज की तकरीबन 95 सुन्नतें तहरीर फरमाई हैं। सही। हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी हैं। सही। जो वुजू के बाद आसमान को देखकर एक मर्तबा सूरह कदर पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह उसकी नजर कभी कमजोर ना होगी। सही। जनाब आपसे भी एक गलती गालिबन हुई है। जी जनाब, पहले ही सवाल में गलती हुई। नबी पाक ने 500 जुम्मे ही अदा फरमाए हैं और आपने उसको गलत कहा। अब जनाब इन्होंने भी 4 नंबर हासिल किए हैं। मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल होता जा रहा है। अब बारी है सरले कलां के हसनैन भाई की। जिस चीज का बंदों को हुक्म है उसे वक्त में बजा लाने को कज़ा कहते हैं। गलत। तौबा के 3 रुकन हैं। सही। जुमा के दिन 1 नेकी का सवाब 70 गुना है। सही। जो हुकूमत की मशगूलियत के सबब नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हशर हामान के साथ होगा। गलत। जो दौलत के बाइस नमाज तर्क करेगा उसका हशर फिरौन के साथ होगा। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। सरले कला वालों ने बड़ा अच्छा एक जंप लगाई है। अब इसका मतलब ये हुआ नाजरीन, फर्क हो गया है 2 नंबर का। सरले कला 2 नंबर से आगे है और अब आखिरी इस्लामी भाई पर या खानेवाल या सरले कला। और अब बारी है मोहम्मद बिलाल जिनका ताल्लुक है खानेवाल से। उनसे सवाल करेंगे, अगर कोई विजारत के सबब नमाज तर्क करेगा उसका हशर कारून के साथ होगा। सही। अगर कोई तिजारत की मसरूफियत की वजह से नमाज छोड़ेगा उसे बरोज़े क़यामत उबई बिन खल्फ के साथ उठाया जाएगा। सही। हजरत सैयदना फारूक आजम पर कातिलाना हमला हुआ, उसके बावजूद भी आपने नमाज की तलकीन फरमाई। सही। जो नमाज के रुकू और सजदे पूरे ना करे वो नमाज का चोर है। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ। सही। जनाब आपसे एक गलती हुई है और पहला सवाल जो था उसका जवाब गलत सही था, जिसको आपने सही कहकर गलत कर दिया। बड़ा मुश्किल है, दोबारा सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। बहरहाल अब आखिरी इस्लामी भाई हैं। अब मुकाबला नाजरीन इनके कांधों पर है और इनका नाम है तैयब जफर। 3 नंबर इन्होंने हासिल करने हैं। अगर मुकाबला जीतना है सिर्फ 5 में से 3 सही जवाब दे दें, सरले कला आगे बढ़ जाएगा। जनाब तैयब भाई तैयार हैं। तरीकत के 4 मशहूर सिलसिलों में सिलसिला-ए नक्शबंदिया भी शामिल है। सही। तशबीक के माना एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना है। सही। दाबतुल अर्ज एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कोहे सफा से जाहिर होगा। सही। वितर का वक्त इशा के फर्जों के बाद से सुबह सादिक तक है। सही। खवातीन के लिए अजान और इकामत मकरू है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। आज का मुकाबला सरले कला के इस्लामी भाई जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। खरे
खानेवाल वाले दिल छोटा ना करें, इंशाअल्लाह मुकाबला एक और इनको मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ट्रेन टाइम पे स्टेशन पहुंचा दी है। हमें 9:30 बजे का वक्त दिया गया था, तो चले पाकिस्तान की ट्रेनें लेट होती हैं, मगर हमने कोशिश की कि हम एंड 9:30 बजे कर दें। अब जल्दी जल्दी कुरानदाजी करेंगे और फिर काफिला इज्तिमा की तरफ चलेंगे। आइए दोनों टीमें आगे आ जाएं। नाजरीन, क्या ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी रेडी है? जी अच्छा, कुरान आज सवाल जो कल प्रोग्राम से पहले आपने जवाब देना है मैसेज के जरिए। कुरान करीम में बेहतरीन मशरूब किसको करार दिया गया? वेरी यूनिक क्वेश्चन है। कुरान करीम में बेहतरीन मशरूब किसको करार दिया गया, इसका आपने जवाब देना है। और माशाल्लाह तैयब भाई को, सरले कलाम वालों को हम ये बेहतरीन परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दे रहे हैं माशाल्लाह। अब कुरानदाजी, अच्छा जनाब, फाइनल स्कोर बोर्ड दिखाएंगे? दिखाइए। ये माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में इनका तोहफा निकला और ये खुद माशाल्लाह यहाँ आ गए तोहफा लेने के लिए। अब काफिले में भी आ जाए भाई माशाल्लाह, अब तो काफिला इज्तिमा चल रहा है माशाल्लाह, काफिले का सीजन है। तो चले माशाल्लाह कुरानदाजी कीजिए जल्दी से। हमारे सिलसिले की इब्तिदा में सवाल किया गया था कि कुरान करीम की कितनी सूरतें तस्मिया शरीफ यानी बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं। दुरुस्त जवाब है 113। अब्दुल्ला अहमद लाहौर, शहजाद अत्तारी लाहौर, बिनते तालिब हुसैन अत्तारी मुजफ्फरगढ़, बिनते हुसैन कराची, मोहम्मद कुर्बान अत्तारी रहमियार खान, बिनते नूर जमान लक्की मरवत, बिनते हामिद खुशाब सिद्दीक शाह करोड़ पक्का, सैयद फैजान रजा अत्तारी हैदराबाद, उम्मे अहमद रजा बहावलनगर, बिनते अमानुल्लाह अत्तारिया गुजरावाला, बिनते अंसर चीचावतनी। आज तोहफा जा रहा है लाहौर शहजाद अत्तारी माशाल्लाह। अच्छा, आज ये जो बेहतरीन तोहफा है कंजुल इरफान और लफ्ज ब लफ्ज कुरान का मारफतुल कुरान अला कंजुल इरफान, मेरी तमन्ना है आज मैं उस इस्लामी भाई को तोहफा दें जो हमारे इस पूरे हॉल में सबसे बड़ी उम्र के हो, जिनकी उम्र सबसे बड़ी हो। अब कौन है बताइए भाई, जाइए देखें जी। कितने साल? 72 साल। इनसे बड़ी उम्र का कोई? जी अब्दुल्ला भाई 70 साल। चले अब्दुल्ला भाई 2 साल से आप पीछे हो गए। और कोई इस्लाम में 72 से बड़ा कोई है? चले भाई बुजुर्गों आ जाए माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे बुजुर्ग अब अल्लाह करे पढ़ भी सकें और अपने बच्चों के जरिए सुनेंगे इंशाल्लाह। ये हौसला अफजाई भी है, अपने बुजुर्गों की ताजीम हमें करनी चाहिए। चले जनाब, अब कुरानदाजी भी होगी, घबराइए नहीं, आपको कुछ और तबरुकात भी दिए जाएंगे। 6554 ये नंबर है बड़ों के लिए और 6516 ये नंबर है बच्चों के लिए इंशाल्लाह। आइए नाजरीन चलते हैं इंशाल्लाह। हम यहाँ जरूर सलातो सलाम पढ़ेंगे। अच्छा, क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी पहले कर दें इंशाल्लाह। माशाल्लाह सही जवाब गज़वा तबूक था, जिसपे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया और ये 5 सबसे ज्यादा अपना पूरा माल दिया। ये 5 आईडीज हैं। क्या नाम है हुजूर आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन भाई माशाल्लाह, कहाँ से आए हैं? भीमपुरा से आए हैं माशाल्लाह। एक वाइस शख्स पूरे इलाके में सदाए मदीना लगाते हैं। देखें आपको सदाए मदीना का आपको तोहफा भी मिल गया। आइए नाजरीन, हम स्टूडियो में तो सलातो सलाम जरूर पढ़ेंगे।